So, good morning, everyone. Today we will discuss the concept of seated and okay, the concept of seated and pedagogy. In the class section of English, most of the students feel that seated we should read the grammar, but in the exam of seated we just feel only the question asking from the introduction of grammar. First content is coming up, introduction of parts of speech. Now the first question rise from here, how many content and how many topics are involved in the parts of speech? In the parts of speech we have 8 topics. These are some common 8 topics like noun, pronoun, verb, adverb, so on. These are the some topics about the given 8 topics. These are given topics are noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are the some topics. But in the exam they are not asking the content of noun application, pronoun application. They are asking the content, what the types of noun and what the types of pronoun, and asking the question. For example, the question is comes up, he is doing a work for me. Underline this me, and asking the question is what's me, which type of pronoun is me, and the given the options are coming here. First is a subjective pronoun, second is objective pronoun, third is it's possessive pronoun. That's what asking question comes. It's called the introduction of parts of speech. So these type of question comes in the examination from the grammatical concern in the seated exam for the asking question from the parts of speech. Now the second term is comes up in the examination is comprehension. Comprehensive terms comes up the examination is called how to read, and what type of question comes up in the exam in the comprehension, and how we getting the answers for it. Comprehension is for reading style. First one, the concept is reading style. Some students just read out the comprehension truly just like a newspaper, but this is not important. In the exam of comprehension, we should read the comprehension just carefully by using the sense of the grammar in that, because the question also comes of the 2 sections. In the comprehension, we just focus first, it's a sense of, it's an active format, is in the passive format. सबसे पहले बेटा हमें ये चेक करना होता है कि किस फॉर्मेट में कॉम्प्रीहेंशन हमें गिवन है, और वो कहाँ से जजमेंट होगा, वो होगा नॉलेज ऑफ ग्रामर से. इफ जस्ट वी अंडरस्टैंड द कंटेंट, अगर हमें एक सेंटेंस मिलता है और उसे एक सेंटेंस हम जज कर पाते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्मेट में है या पैसिव फॉर्मेट में, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. अगर हम उसको जज नहीं कर पाते हैं तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम फॉर अस. इज द कॉम्प्रीहेंशन, फर्स्ट यू रीड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन, एंड द सेकेंडरी थिंग इज कम्स अप how to find the title or heading of comprehension. That is the important when the question comes up in the exam, and this is the what how we decide which the type of comprehension comes in the examination. How to find, that's a very important one, that in the comprehension first two or three lines and the ending 2 or 3 lines will decide that what's the title of the comprehension. So we read out with the sense of active format and passive format. For example, that's a very easy to understand how to identify its active and passive. We just focus on the some helping verbs and verb the sentences. For example, this statement is given to me for my career.
that the statement is comes up, that the sentence is comes up. This is sentence we just identify it's the active format and passive format. Some students just we read out and they identify it's in passive format. What the rule to find out? The rule is very simple. When you write, just listen and memorize for it. The helping verbs are, for example, the helping verbs are which are using for the verb of V1 ing. Just like some helping verbs, for example, is, am, are, was, were. This type of helping verb, just following the verb is V1 ing. In the concern, when you find here the word as a subject, as a doer. That is the identification first. The first word is subject and doer, and these are the helping verb which follow the verb as a V1 ing. It's called the active format. But according to this pattern, the first word is here becomes the role player as an object and the receiver. And the same helping verbs comes up in, and V third use is called the passive format. So that is the big question comes up, and how to identify the format, how to active verbs and the passive verbs in the format. That is the very crucial point in the examination preparation in the comprehension statement. After that, we are just finding the questions comes up. Exam of CTET, asking some question, just half statement question. It's called sub question comes up like half statement. For example, coming up, you say, he said that, and the statement is comes up just and questions options are coming first, second, third, and options. These are the options comes in the half statement question. Is the question comes up in the which tense? It comes in the which tense in the past tense. The answers always comes in the past tense. Format, which is the format is active format, the answer is also in the active format. That is the pattern to come given the question answers in the exam of comprehension. So next coming up in the comprehension, the next question comes up regarding to the language question. For example, it is a decided statement, so on, and these are the underlying concept is comes up. The options comes up like it's a past participle. The question comes up it's a present participle. Next one is comes up is a V third, it's a V second. That is a very important to give the answers in the exam. The past participle, present participle, V third, V2. The question here, the students do not know what is the difference between the participle. What is the participle? Participle is just saying some. The word is given the answer here. Participle said, in the participle, you just meaning about the participle. Participle means using verb. Verb is used to show the adjective sense in a sentence. किसी भी सेंटेंस में बेटा अगर वर्ब एक एडजेक्टिव सेंस को रिप्रेजेंट करती है, एडजेक्टिव की तरह रिप्रेजेंट की जाती है, इट मींस दैट इट्स कॉल्ड द पार्टिसिपल. एंड दैट्स एडजेक्टिव सेंस टू सेगमेंट्स हियर. फर्स्ट वन द प्रेजेंट पार्टिसिपल and second one the past participle. When you use V1 ing, first form ing used as an adjective segment, it's called the present participle. When you use the V third as an adjective sense, it's called the past participle. In this sentence, it is a decided statement. Decided is used the qualify the statement. It's been decided showing the adjective format, and decided is looking like the V third. So that's why the answer should be past participle. So I think this is the question comes up. The next question comes up in an exam as a language question from the comprehension. So the next question comes up. The next question comes up is called a sense of vocab. Sense of vocab is called as a given of that. Vocabulary is a very important section. Vocab, some students are learning as just cram the words, but not are just understanding the concept. How to use the word in a sentence, that is important. Vocab comes up, for example, English words. This is a very, very important concept. English words just distributed in 4 sectors. First one is noun, second word is verb, third one is adverb, fourth one is adjective. In these called are, that is the very, very important. These called are is called the main section of the word. How to identify the synonyms and anonyms in the same word and opposite word. For example, comes up the word is agreement,
agreement is the word. Agreement is called a noun. If you given some words are a compromise, given other words here the sacrifice, given the word is a bond. So making some sections here, the sections here the same word, we just finding out the agreement. The agreement is called the bond. When a compromise, sacrifice, given us some extra words here, contract. So that is a very, very important concept, the contract. The confusion here, so the confusion is, it's should the suitable answer for that agreement is bond or contract, because it gives the similar meaning, but we are not going on the meaning. हम meaning पे नहीं जाएंगे बेटा, हमें focus कहाँ पर करना है, हमें focus करना है कि word क्या है, इन चारों में से ये word क्या है. The agreement is called some word identification about, and the last suffix comes up. अगर किसी word के last suffix है ment, tion, ance, sion, these are called the noun. So agreement is here the noun. So we just finding out the same word here as the same category is called the noun. So this is a compromise, sacrifice, and given us some words. So they given a bond and contract. The answer is main two. They given the proper meaning, bond and contract. But contract is here as main is verb, and bond is here is the noun. But it's also use the contract also in the sense of noun, but contract the actually is the main verb. When I given the concept here, they given a two words. Some words are here used for noun and verb both. कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज होते हैं. हमें यहाँ पर एक्चुअली नाउन फाइंड करना है, ऐसा शब्द नहीं फाइंड करना है जो दोनों तरह यूज होता है. इसका एग्जाम्पल और देखिए आप. एक वर्ड होता है बेटा वर्क, इसको हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, एज अ नाउन, एज अ वर्ब. तो अगर हमें कोई ऐसा शब्द मिलता है जो दोनों तरीके से यूज हो रहा है, नाउन और वर्ब, तो हम उसको ऐसे ही फाइंड करेंगे नाउन और वर्ब की तरह. बट दिस इज ओनली द परफेक्ट नाउन. So we just find out here the bond is perfect noun. The answer should be bond. Is this clear? But when you find out the word is here, they're given a different part. They're given an actual sense. So this is the session ki how to find the same word and how to find the opposite word. So that is important section in the comprehension in the exam. So the next part is pedagogy. Pedagogy is a some little of part of extra and next in terms of examination. Some students feel that pedagogy is something theory. We should just read out, cram that theory and understand that. But in pedagogy, what is the pedagogy? Pedagogy is a similar section. For example, how to teach or how to learn. These two meaning is pedagogy. These two meanings just understand what the actually comes from in a peda. Pedagogy is just given a is to just like to learn something, is given a pedagogy, is a section of that. Section is that some parts. For example, teaching of language or learning of language. अब यहाँ पे बेटा हमारे ब्रेन में दो क्वेश्चन जैसे राइज हुए. एक काम है हमें लर्निंग करना है, हमें बताना है, बच्चों को समझाना है कि लर्निंग कैसे होती है. दूसरा हमें टीचिंग करना है, हमें टीचिंग करना है किसी कॉन्सेप्ट को, एक लैंग्वेज को, कि कैसे हमें पढ़ाना है. तो पैडा के अंदर हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं. तो लर्निंग कैसे करते हैं, टीचिंग कैसे करते हैं. अब सोचिए ज़रा, हमारे ब्रेन में भी क्वेश्चन आते हैं. लर्निंग के भी, टीचिंग के भी कुछ मैथड्स होंगे, कुछ अप्रोचेज होंगी. गिवन अप्रोच होगा, मैथड्स होगा, सम पार्ट्स ऑफ क्लियर. इसके अलावा कुछ स्किल्स होंगी. इसके अलावा हमारे पास कुछ पेडागोजिकल कंडीशंस होंगी. दिस आर द क्वेश्चन कम्स अप. कंडीशंस क्वेश्चन कम्स अप. फॉर एग्जांपल थर्ड क्लास का स्टूडेंट है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज़ पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको किस मेथड से, अप्रोच से या स्किल से पढ़ाएंगे या उसको सिखाएंगे. दिस आर द सम सेक्शन कम्स अप. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द मेथड्स, अप्रोच, स्किल्स एंड कंडीशन. इसके अलावा एग्जाम के अंदर कुछ और पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं पैडा के अंदर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. टाइप्स ऑफ maxims, types of words, sentences, types of figure of speech. That is a very, very important section of figure of speech. Some question comes up like इसको हम पैडा कह सकते हैं, इसको हम पोएट्री सेक्शन भी कह सकते हैं. That is a very important figure of speech. So अलग से मैंने इसको इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच एक मेन पार्ट है जो हमारे पोइट्री के किसी भी एग्जाम में अगर कोई स्टेंजा आता है,
तो उसको हम सॉल्व करने में हेल्प करता है हमें। अब ये सारे टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं पैडा के अंदर, और इसके अलावा जो हमें मेथड्स पढ़ने हैं, अप्रोचेज पढ़ने हैं, स्किल्स पढ़नी, तो दीज आर वेरी वेरी। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं। दीज आर द स्किल्स आर कम्स ऑफ द लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, writing. But everybody knows that these are the 4 skills. But the question comes up, which 2 skills are important for teaching in primary section? Primary sections में कौन सी सबसे important 2 skills होती हैं? That is a very very important question. Primary section में हम किस skills को ज़्यादा focus करते हैं, ज़्यादा उस पर emphasis करते हैं? तो these are 2. In the primary section we are making the 2 sections, listening and speaking. ऐसा नहीं है कि हम उसमें रीडिंग नहीं कराते, ऐसा नहीं है कि हम उसमें राइटिंग भी नहीं कराते, दोनों चीजें हम कराते हैं, लेकिन जस्ट फोकस ऑन, मेन फोकस ऑन दैट द सेक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्शन, 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, एंड दिस वन इन कम्स ऑफ सम विद दिस प्लस थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास. तो दिस द सेक्शन कम्स अप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू learning that. Thus listening and speaking skill is a very pre-primary, just given up a government section like the first and second class. That's very very focused and comes up the emphasis on this. इसके अलावा बेटा पेडा के अंदर एक सेक्शन और है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है. दैट इज अ बिग डिफरेंस है कि हम लोगों को कुछ पॉइंट्स का पता होता है, मेथड्स का पता होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. एक्सप्लेन मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम इसको सीखेंगे वो क्या है, देखो. एग्जाम्पल के लिए पेडा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पर लेके आता है वो ये होता है कि सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स को समझना होता है जो हम इसकी वोकैब भी कह सकते हैं. सबसे पहले एक वर्ड आता है कभी कभी, दैट वर्ड इज कम्स अप लेक्सिकल. अब लेक्सिकल क्या होता है? तो लेक्सिकल इस मैंने अभी आपको लिखा भी था, लेक्सिकल एक टाइप्स ऑफ वर्ड होता है. और टाइप्स ऑफ वर्ड, अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्लीज फाइंड आउट द लेक्सिकल वर्ड, और कई बार सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आया भी है. तो लेक्सिकल है क्या, अगर बच्चे को यही नहीं पता, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वर्ड्स के कुछ सेक्शंस में हम बात करें. वर्ड्स का सबसे पहला पॉइंट होता है दैट इज लेक्सिकल. और लेक्सिकल के अंदर क्या होता है? लेक्सिकल के अंदर होता है बेटा नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. So these are 4. These are 4 the combination. It means that we can say the independent meaning. जिनका अपना एक सेल्फ मीनिंग होता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे वर्ड पर या सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करते. दैट इज कॉल्ड द लेक्सिकल. अब लेक्सिकल के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में ही पूछा गया था एक बार. प्रिंसिपल, इफ, कैन, मे, इनमें से पूछा जाता है कई बार कि लेक्सिकल वर्ड कौन सा है. तो लेक्सिकल वर्ड इज वेरी सिंपल दैट कि कैन और मे आप सब जानते हैं ये मोडाल्स होते हैं. मोडाल्स को ही बेटा ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है. इफ जो है वो हमारा कंडीशनल वर्ड होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है इसमें वो है नाउन. तो आप इन चारों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा. द नाउन इज कम्स अप, दिस कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ड. अब इसी के साथ आता है सेकेंड टर्म्स पे कभी कभी फंक्शनल वर्ड. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है, आप खुद समझिए फंक्शन. एक लैंग्वेज का फंक्शन क्या कहता है? लैंग्वेज का फंक्शन कहता है जो ग्रामर के टॉपिक्स में आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी फंक्शन कैसे करता है वो लैंग्वेज, फंक्शन कैसे करती है वो लैंग्वेज, बिहेव कैसे करती है. तो बिहेव कैसे करेगी? बिहेव करेगी कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझ में आ जाए तो वो फंक्शन होता है उसका. अब स्ट्रक्चर कैसे है? इसके अंदर आता है बेटा प्रोनाउन, इसी के अंदर आता है बेटा मोडाल्स, इसी के अंदर आता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, इसी के अंदर आता है प्रेपोजिशन, और इसी के अंदर आता है बेटा कंजक्शन. सो दीज आर द सम सेक्शन अबाउट इन ग्रामेटिकल टॉपिक दीज आर, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पेडा. फॉर एग्जाम्पल कि फंक्शनल वर्ड इनमें से कौन सा होता है. अगर हम कोई ऑप्शंस में लेते हैं, इन्हीं ऑप्शंस की बात करें तो कैन और मे हमारे मोडाल्स हैं. दिस टू आर अ फंक्शनल वर्ड. अभी मैंने आपको बताया फंक्शनल वर्ड का मतलब क्या होता है. फंक्शनल वर्ड का मतलब होता है जो एक स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. अब वो क्या है आप खुद बताइए. मोडाल्स इज इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे हम जोड़ने के लिए काम आता है. इसके अलावा प्रोनाउन हमारे नाउन को सिंबॉलिक करने के लिए काम आता है. प्रेपोजिशन भी सेंटेंसेज और कंटेंट को जोड़ने के लिए काम आता है, और कंजक्शन भी सेंटेंसेज को जोड़ने का काम आता है. बट ये अपना अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखते. दिस आर कॉल्ड द फंक्शनल वर्ड एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ड. सो दैट द basic difference between these two. Understood that? That's a very next content is comes up. एग्जाम में इसी टर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
what the difference between the auxiliary verb or the helping verb? That is a very very important question and the confusing question. What is auxiliary and what is helping? Auxiliary verb हमें पढ़ाना है, टीच करना है, या helping verb हमें पढ़ाना है या टीच करना है. These are two basic difference. Helping verb just showing the time and auxiliary just showing the mood of action. These are two basic difference. जहाँ कहीं हम किसी conditions में बात करते हैं, conditions mood की बात करते हैं, mood regarding हम बात करते हैं capability, हम बात करते हैं ability, हम बात करते हैं possibility, हम बात करते हैं किसी और टर्म पे, तो वो हमारे लिए ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती है. लेकिन हम बात करते हैं किसी एक्शन के होने के समय की. फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला मेक अ प्रोजेक्ट, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होता है व्हेन. तो ये व्हेन यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर सकती है. जैसे अगर मैं इस सिस्टम में बता दूं ऐसे कुछ, ही इज़ मेकिंग अ प्लान या ही इज़ मेकिंग अ प्रोजेक्ट, तो इस टर्म्स में ये इज़ डिफाइन कर रहा है एट्स ए प्रेजेंट टाइम. So this is the basic difference between the helping verb and auxiliary verb. So we just define the overall concept here. In a pedagogical concept, the question comes up in the examination. So next part is a theory, जिसको आप क्रैम करते हैं, रटते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि आप लोग उसको कहते हैं कि मैथोलॉजी क्या है, ये सारे टर्म्स क्या है. जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. इंग्लिश लैंग्वेज इज अ, और बहुत ही लगभग सभी राइटर्स ने, सभी थ्योरी की बुक्स में ये गिवन भी है, और क्वेश्चन में रिपीटेशन में आता है ऑप्शन के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन क्या है, उसको हमें समझना है. दिस द पेडा. क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ने फॉरेन भी पढ़ा है, इसको कहीं कहीं सुना है, सेकंड भी पढ़ा है, और कहीं कहीं ग्लोबल भी पढ़ा है, ग्लोबल भी आपने इसको पढ़ा है. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे समझेंगे. क्वेश्चन था बेटा हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछा उसने कहाँ पर, उसने पूछा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज है हमेशा फॉरेन लैंग्वेज. लेकिन अगर वो आपसे पूछता इंग्लिश लैंग्वेज इज अ इन इंडिया, दैट्स कम्स द आंसर इज सेकेंड लैंग्वेज. इसी के अगर वो क्वेश्चन को फिर चेंज कर देता, वो बोलता आपको इंग्लिश लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ. एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है, तो दैट इज ग्लोबल लैंग्वेज. तो हमें ये तीन चीजें कैसे समझ में आ रही है और कैसे पता चल रहा है. इसका मतलब ये है कि जो एनसीएफ है, जो एनसीएफ 2005 हम पढ़ते हैं एजुकेशन के अंदर, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो केवल इंडिया के लिए नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है. वो इसीलिए ग्लोबल बोल रहा है उस लैंग्वेज को, क्योंकि जब एक से ज़्यादा कंट्रीज में वो कोई चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबल टर्म्स पे यूज़ हो जाती है. तो दैट इज़ द टर्म्स ऑफ द ग्लोबल लैंग्वेज. द क्वेश्चन को वो हल्का सा मूव करेंगे और आपका आंसर भी उसी तरह के मूव हो जाएगा. क्लियर इज दैट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स अप इन ए थ्योरी. थ्योरी फॉर एग्जाम्पल सम पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, incidental method. So these are the concepts of methods in the come to teaching and learning. But the theory in a PEDA, PEDA कहती है कि जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, इंसिडेंटल मेथड की बात करें, हम क्या करेंगे, बुक्स क्या करेंगे, बुक्स करेंगे उसको डिफाइन, उसकी डेफिनेशन, उसकी अप्रोच, उसके यूजेस, ये सब बताएगी. लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आना है. एग्जाम में आना है कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर थर्ड क्लास के बच्चे को मुझे इंग्लिश रीडिंग करना सिखाना है, द क्वेश्चन कंडीशंस को ध्यान से सुनिए. थर्ड क्लास के स्टूडेंट को मुझे इंग्लिश रीडिंग करना सिखाना है, इंग्लिश पढ़ना सिखाना है, तो मुझे किस मेथड से उसको सिखाना है. द क्वेश्चन वेरी इजी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेल, कि थर्ड क्लास में मुझे पढ़ना सिखाना है, बच्चे को रीडिंग करना सिखाना है, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को, टर्म्स को, तो वो किस मेथड से हम सिखाएंगे. तो हमारे पास वो उसकी डेफिनेशन काम नहीं आनी है, अप्रोच काम नहीं आनी है. हमें सोचना जरा है कि ये डायरेक्ट जो है और इनडायरेक्ट जो है और इंसिडेंशियल जो है, इसमें से कौन सा मेथड. एक तो होता है टीचर ऑन द स्पॉट वहाँ यूज करता है, लेकिन एक होता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा उन्होंने बेहतर बताया इस टर्म पे, इस कंडीशन पे. अब सोचिए जरा, थर्ड क्लास में अगर हम इंसिडेंटल लेके आते हैं या थर्ड क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके आते हैं, तो हमें ये डिफाइन पहले होना चाहिए, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इंसिडेंटल क्या है. इंसिडेंटल आपको भी पता है, जस्ट लाइक टू एग्जाम्पल, यानी कोई भी एग्जाम्पल प्रेजेंट करके हम लोग इंसिडेंट्स के आधार पे पुराने इंसिडेंट को अपने टीचिंग मैथोलॉजी में लेके हम इंसिडेंटल मेथड को कवर करते हैं. डायरेक्ट मेथड का मतलब और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं, इसका मतलब है कि हम केवल अप्रोच पे गए, डेफिनेशन पे गए, रूल्स पे गए, तो हमने डायरेक्ट मेथड को वहां पर यूज कर दिया. लेकिन इनडायरेक्ट इज अ टफ.
इंडायरेक्ट मतलब क्या है कि पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, सराउंडिंग एग्जाम्पल्स लिए, और उसके बाद हम डेफिनेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट केस। तो यहाँ पर सोचिए कि एक बच्चे को मुझे रीडिंग करना सिखाना है, तो मुझे सबसे पहले एक टीचर को, एज ए टीचर मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा कि उस टर्म को, उस सीक्वेंस को मुझे पहले पढ़ना है और फिर उसको वो रिपीट कराना है। यानी हमारे पास एक टर्म्स आएगा जिस टर्म का नाम होता है बेटा इमिटेशन, यानी उसको मुझे इमिटेशन कराना पड़ेगा। इमिटेशन का मतलब ये है कि मैं खुद उसको पहले पढ़ के बताऊंगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो उस सारे टर्म्स को, उस पूरे सेंटेंस को जब मैं पढ़ूंगा तो बाद में उसको बोलूंगा कि आप भी इसको ऐसे ही पढ़ के दिखाइए। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो इमिटेशन कर रहा है। तो इमिटेशन कहाँ से आया? इमिटेशन लिया कहाँ से हमने? खुद सोचिए, एग्जाम्पल से जब मैंने डेफिनेशन बनाई है तो एग्जाम्पल मैंने कहीं ना कहीं से किसी टर्म्स को उठाने के लिए एग्जाम्पल लिया होगा, उसके बाद मैंने डेफिनेशन बनाई होगी। तो इसका मतलब है इमिटेशन मेथड हमारा कहाँ से आया? इसके अंदर आया, यानी इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं थर्ड क्लास के बच्चे को इनडायरेक्ट मेथड लेके पढ़ाऊं तो उसके लिए वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, बहुत इजी रहेगा कि उसको समझना कि भाई इनडायरेक्ट मेथड के आधार पे मैं इमिटेशन करूंगा और आराम से जैसे जैसे हमारे टीचर बोल रहे हैं, जैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जो तरीका है उनके पढ़ने का, मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो ये बहुत ईजी होगा उसके लिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा टर्म्स पे हम बदल दें, यही क्वेश्चन आ जाता है कि 6th क्लास के बच्चे को अगर आपको सिखाना है तो वहाँ ये टर्म्स बदल जाएगा, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे को डेफिनेशन समझ में आती है, डेफिनेशन के बारे में पता चल जाता है व्हाट इज डेफिनेशन। तो डेफिनेशन उसको पहले जजमेंट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि बेटा आप इसको खुद ही पढ़ो। बच्चे को खुद पढ़वाया जाता है, उसके बाद टीचर उसको करेक्शन कराता है। So that is a concept in direct method in the class of 6th level. So this is a very different and clashing. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिस इज अ वेरी क्लैशिंग पॉइंट लाइक टू टीचिंग मैथोलॉजी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बेटा लैंग्वेज में एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में के कॉन्सेप्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको ये मेथड्स डिफाइन करता है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, ये सब। लेकिन उसको लैंग्वेज में अप्लाई कर कैसे किया जाता है, किस टर्म पे वो बेनिफिशियल है, तो ये हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करते हैं। सो दैट इज द, आई थिंक इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हाउ टू यूज द पेडा फॉर्म इन CTET exam, how to use the grammatical form in CTET exam. These are 2 sections comes up in the examination. और एग्जाम के क्राइटेरिया सिलेबस में क्या दिया होता है? क्राइटेरिया सिलेबस में दिया होता है बेटा कि हमें केवल कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही जो क्वेश्चन होते हैं, these are question comes of the language question, question comes of the grammatical question, asking of the identification, and question comes of the PEDA. So these are the some section of the comprehension, these are part in the CTET exam. It's enough. I think you can understand well now how to read and what the concept we should read in the exam of the CTET and what the concept we should leave in the exam section. So thanks for today.